Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, welcome back to the another video. So in today's class, actually last class we did some minor mistake in MCQ number 51. So in today's class we are going to start it from MCQs 51. Okay. So let's do it. If you have any confusion in any MCQs, then please put that question in the comment section. Okay, I will answer you. So that is MCQ 51. That is a battery supplies 150 watt and 196 watt power to two resistor of 6 ohm and 4 ohm when they are connected separately to it. The internal resistance of the battery is, so in this case, like it is not given to us that both resistor 6 ohm and 4 ohm resistor are connected in series. It said that like two resistor when they are connected separately to it. Okay, so when they are connected separately to it, it means that this is my 6 ohm resistor. Okay, so over here we have battery. Okay, और उसके साथ minor internal resistance होगा, and this is the question you need to find this resistance. Okay, अच्छा, now 150 watt supply, so it means that this 150 watt power will come across this resistor. Okay, 6 ohm resistor, and this voltage is unknown. This is the battery voltage and this is the minor resistor. Okay, similarly we also have another circuit, that is this one. Okay, and over here we have a battery. Okay, that is having the voltage V. Why I am going to take the same voltage? Because it's given in the question. Okay, the internal of the battery supplies. Okay, so like we have same battery, but now we have a resistance that is 4 ohm, and the voltage across this resistance is 196 ohm. Sorry, 196 watt. Okay, the power supply to this resistor is 196 watt. Okay, so for this you need to find the current. Okay, and the current that should be equal to, like across this we have voltage, but that should be less than this voltage. Okay, so in this case my current will be equal to I is equal to V divided by R plus 6. Okay, same current will also flow in this resistor. Okay, so we can find that resistor by using this formula, P is equal to I square R. So in this case power is 150. Okay, and current is I square and R is 6 ohm, so divided by 6 हो जाएगा. So this is your I square. Okay, so you can put that over here in this. That should be I square. This should be I square. ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा. So your I square will be equal to 150 divided by 6. That should be equal to V square divided by R plus 6 whole square. Yeah, we can write it like this. Similarly you will also do it for this. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा करंट फ्लो हो रहा है कितना, I is equal to V divided by R plus 4. So similarly over here I square will be equal to V square divided by R plus 4 square. Okay, so as we know that P is equal to I square R, so your P divided by R will be equal to I square. So in this case P is 196 divided by R is 4. That's equal to V square divided by R plus 4 whole square. So now what you will do, you need to substitute this value. Okay, over here, so it will give you 196 divided by 4. That's equal to 150 divided by 6. ओके, नीचे आपका अपना वो आ जाएगा R plus 4 आ जाएगा, ऊपर आपका 150 डिवाइड बाई 6 इंटू R plus 6 आ जाएगा स्क्वायर. दिस विल आल्सो ये भी स्क्वायर होगा. सो ओके, या दैट्स राइट. ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी हमने कैलकुलेटर के थ्रू इसकी हमने सिम्प्लिफिकेशन करनी. 4 times 1 is 4, 4 times 4 is 16,
17, 18, 19, 4 times 9 is 36. So it will give you 196. Okay. 3 times 2 is 6. 3 times 5 is 15. और 0 आ जाएगा तो 25 ऐसे आ जाएगा. तो आपका 49 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा. इसको मैं रीचेक कर लेता हूँ. 196 divided by 4, yeah, that's equal to 49, and 150 divided by 6, that's equal to 25. Okay, तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा 49 divided by 25. ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा r, इसको मैं से लिख सकता हूँ r प्लस 6 डिवाइड बाई r प्लस 4 होल स्क्वायर, या आई कैन नॉट इट लाइक दिस. ओके, स्क्वायर रूट ले लो. सो दिस से 7 आ जाए, 7 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा. और आपके साइड पे क्या आ जाएगा r प्लस 6 डिवाइड बाई r प्लस 4 आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो इससे आ जाएगा 7r प्लस 4 टाइम्स 7, दैट्स इक्वल टू 28. यहाँ पे आपके लो 5 टाइम्स r हो जाएगा. 5 टाइम्स 6 इज 30. इससे क्या आ जाएगा, इसको साइड पे ले जाओ तो 30 माइनस 28 विल गिव यू 2. इसको साइड पे ले आओ तो ये भी 2 दे देगा. सो r विल बी इक्वल टू 1. So you, in this case your answer will be equal to B. Okay, ये हमारे पास correct answer होगा. Okay, next MCQ number 52, that is in the circuit of figure 4.10, the bulb B does not light although ammeter A indicate that the current is flowing. Why does the current not light? The switch is in the closed position. So over here in this case, like this is the variable resistor. Okay, and one bulb is attached in series with the ammeter. Okay, और इसके साथ हमारे पास switch connected है. This is the battery. Okay, so now in this case the switch is in the closed position. Okay, so why does the bulb not light? So यहाँ पे देखो bulb is fused. now यहाँ पे ये कहना है कि हमारे पास switch that is closed. There is a break in the circuit between bulb and ammeter. If there is a break in the circuit, then ये ammeter आपको reading, then this ammeter will not give you any reading. Okay, the resistance of variable resistor is too large. There is a break in the circuit between bulb and the variable resistor, so this is also not possible. Okay, so now over here, like this is the correct answer. Okay, why this is the correct answer? Because in this bulb we have some sort of its rating current. Okay, this is the rating current. Okay, and we also, and this is my circuit current. Okay, so now if you increase the, so what will happen if you increase the resistor? Okay, so if you increase the resistor, what will happen? Your current will get decreased. Okay, if you increase the resistor, then your current will get decreased. So what, so in this case the circuit current will be less than the rating current of this bulb. Okay, so that's why this bulb will not glow. Okay, but although the ammeter will give you reading. Okay, so यहाँ पे reading आपको देगा ammeter, bulb नहीं जाए. So the resistance of the variable resistor is too large, so this will be correct answer. Question number 53, that is 2 incandescent heater each mark itna and itna are placed in series and then connected to a 250 volt supply. Their combined rate of heating is, so we will need to find the combined rate of heating. Okay, supply is 250 volt. Okay, and we have two identical heater. Okay, let's suppose one is this one, second one is this one. Okay, and both are connected to supply. This is 250 volt. This is also 250 volt, and over here we have 1000 watt. Okay, so and both are identical heater. Okay, okay, we need to find the combined rate of heating. So actually we know that I is equal to I square RD. Okay,
this is the formula for finding the heating. Okay, so in this case the both सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा दोनों का. ओके, और यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है वो भी हमारे पास सेम ही होगा. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो दोनों हमारे पास सीरीज में है. ओके, बट वो रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा. ओके, और पावर यहाँ पे हमने किस तरह फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम पावर फाइंड कर लेते हैं और हमारे पास बस वो आ जाएगा या द कंबाइंड रेट ऑफ हीटिंग, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है. यहाँ पे टाइम दोनों का सेम होगा. ओके, क्योंकि जितना करंट टाइम के लिए इतना करंट इसमें करंट फ्लो होगा तो उतने टाइम के लिए यहाँ पे भी करंट फ्लो होगा. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे दिस इज माई पावर. ओके, सो आई विल नीड टू फाइंड द पावर. ओके, तो उससे हमारे पास कंबाइंड रेट ऑफ हीटिंग आ जाएगा. सो एक्चुअली P is equal to V square divided by R. So in this case, this is the voltage. Okay, this voltage is supplied to both of these heaters. Okay, so this will remain constant. Okay, so power will be inversely proportional to this resistor. Okay, so यहाँ पे हमने अच्छा टोटल पावर कितना होगा, दैट्स विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू. सो आपका लाइक दी टोटल पावर, यहाँ पे हम सीरीज में कनेक्शन है तो इसमें हम पावर इस तरह फाइंड करते हैं कि टोटल P will go to 1 divided by P1 plus 1 divided by P2. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो ऊपर आपका आर आ जाएगा आर टी, दैट्स विल गो टू R1 प्लस R2. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या करना है, पावर इज गिवन टू अस. ओके, सो ये पावर भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो पीटी हमने फाइंड करना है. तो आपका टोटल पावर क्या आ जाएगा, दोनों पावर सेम है तो ये हमारे पास पैरेलल में हम इसको इस तरह कर देंगे, टोटल पावर डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं तो हमारे पास 500 वाट आ जाता है. ओके, एंड पावर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हीटिंग, सो इट मीन्स दैट ये आपका हीटिंग के भी वो है, तो दिस इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर. ओके, अच्छा, नाउ over here we have MCQ number 54, that is an electric kettle boil 1 kg of water in time t1 and another kettle boil the same amount of water in time t2. When they are joined in series, the time required to boil 1 kg of water is. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पावर जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, पावर जो होते हैं वो हमारे पास सीरीज में हम उसको पैरेलल फॉर्म में लिखते हैं. ओके, और हमारे पास जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ओके, और यू कैन से दैट इट विल बी लाइक हीटिंग एलिमेंट विल बी गो टू पी इंटू टी. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो हमारे पास पी है दैट्स विल बी गो टू एच डिवाइड बाई टू हो जाएगा. तो दोनों सीरीज में. ओके, यहाँ पे इन्होंने हमें दिए हैं कि दोनों हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2. ओके, सो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, okay, boil the same amount of water in T2. So in this case, like it will be ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एच हमारे पास कांस्टेंट है तो h बाई T1 हो जाएगा एंड दिस इज h बाई T2. ओके, नीचे आपका h बाई T1 प्लस h बाई T2 हो जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, T1 T2 और ऊपर आपका T1 प्लस T2 हो जाएगा. ओके, h आप कॉमन कर लो इससे. सो यहाँ से आप जब h कॉमन कर लेते हो तो ऊपर भी आपका एक h जो है वो आपका कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर आपका एक h आ जाएगा. यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज टोटल पावर होगी.
सो यहाँ पे आपस क्या जाएगा, ऊपर आपका दिस T1 T2 will cancel by this T1 T2, so this will reverse back, so it will be like this T1 plus T2. okay, that's equal to total power. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टोटल पावर कितना था वो कह रहे थे, टोटल टाइम कितना हो गया, तो टोटल पावर हमारे पास एच डिवाइड बाय टी टोटल था. ओके, सो इन दिस केस it will be like ये आपके नीचे आएगी, यहाँ पे हमने मिस्टेक की है. दिस एच यहाँ से कॉमन कर लो तो एच आपका कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो एच नीचे आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा इट विल बी लाइक एच डिवाइड बाई, ये एच नीचे आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका T1 प्लस T2 आ जाएगा, और ये दूसरा T1 प्लस T2 ऊपर के साथ कैंसिल हो जाएगा. ओके, ये नहीं है यहाँ से आपने कॉमन करने लाइक दिस, तो ये ऊपर चले जाए तो वो नीचे आ जाएगा, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा. सो हमारे पास टोटल पावर कितना है, एच बैटरी. सो इट मीन्स दैट T equal to T1 plus T2. Okay, so option 1 will be correct answer. Okay, so number 55. ओके, यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर जो है वो इस पे हमारे पास एक रजिस्टर ये है, ये हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर है, ये यहाँ पे रजिस्टर है. ओके, और एक यहाँ पे रजिस्टर है. तो अब देखते हैं, वो कहते हैं कि इन द सर्किट शोन फिगर 4.11, ओके, दिस इज द फिगर, द 5 ohm resistor develop heat at the rate of इतना, the heat developed per second in 2 ohm resistor is. सो अब नाउ वी डोंट नो दैट कौन सा हमारे पास इसमें 5 ओम है और कौन सा हमारे पास इसमें 2 ओम है. तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि ये हमारे पास 5 ओम है. ओके, और ये दूसरा मैं चेक करता हूँ, वेट 4 और 6 है. ओके, तो ये आपका 2 हो जाएगा. अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं. तो क्या कहते हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि हमारे पास इन द सॉल्यूशन द फॉर्म रेजिस्टर डेवलप हीट एट द रेट ऑफ इतना, तो हमारे पास ये हीट कितना हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 30.5 कैलोरी है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करें तो 4.18 जूल हो जाएगा पर सेकेंड हो जाएगा. ओके, अच्छा, यहाँ पे फिर हमारे पास है कि 5 ओम रेजिस्टर इतना क्रिएट कर रहे हैं, तो हीट डेवलप बाय पर सेकेंड इन 2 ओम रेजिस्टर, तो यहाँ पे कितना हीट डेवलप होगा. तो यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास जो 5 ओम, सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि 5 ओम हमारे पास 5 ओम, दिस विल बी इक्वल टू एच डिवाइड बाई टी. ओके, तो आपको ये क्या हो जाएगा, एच इज़ गिवन टू अस, दैट इज़ 13.5 मल्टीप्लाई बाय 4.18. ओके, और यहाँ पे हमारे पास टाइम का क्या होगा, तो टाइम यहाँ पे हमारे पास इसको हम इस तरह लिख लेंगे. ओके, अब यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास ओके, सो यहाँ पे हमारे पास किसकी इक्वल है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर की इक्वल है, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, वो कितना है, आर इज़ 5 ओम. ओके, पी हमारे पास इतना है, और यहाँ पे अच्छा, दिस इज़ 13.5 कैलोरी पर सेकेंड, तो टाइम आपका 1 सेकेंड हो जाएगा.
ओके, तो 1 हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी 13.5 मल्टीप्लाई बाई 4.18। इसको मैं 1 सेकेंड पर सेकेंड होगा, ओके। जब भी आंसर आएगा तो वो पर सेकेंड होगा, ये अपने माइंड में रखना है। तो दिस विल बी 5 मल्टीप्लाई बाई 13.5 मल्टीप्लाई बाई 4.18 हो जाएगा, ओके। वी स्क्वायर इज दिस वन। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो तो हमारे पास दिस इज I1, I2 एंड दिस इज I3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू I1, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। KCL अप्लाई कर लो यहाँ पे। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आपका हो जाएगा I किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे बस वोल्टेज भी है दोनों के क्रॉस। तो हमारे पास V डिवाइड बाई R हो जाएगा, तो V डिवाइड बाई 5 प्लस V डिवाइड बाई 10। अब क्या करना है, I स्क्वायर करना है, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे क्या आते हैं, इससे हमारे पास आ जाएगा 3V डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। फिर हमारे पास हमें पता नहीं कि 2 ओम पावर कितना होता है, 2 ओम पावर, दैट्स इक्वल टू I स्क्वायर R। तो I इज दिस वन, 9V स्क्वायर डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। ये इसको इस तरह, या बस ये R कितना होगा, दैट्स इक्वल टू 2। So now we need to find the value of V square. V square value is this one. So your power and 2 ohm resistor will be equal to V square is 5 multiplied by 13.5 multiplied by 4.18 multiplied by 2 divided by 100 this one। तो आपके P to 2 ohm में कितना आ जाएगा, ये एक्चुअली आपका आएगा वाट पर सेकेंड में, but we need to answer it in calorie per second because calorie is given to us, okay। so ये आपका हो जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो एंड दिस 4.18 कैंसिल कर दो, क्योंकि आपका उसमें आ जाएगा 5 टाइम्स 2 इज 10, 10 टाइम्स 10, 9 डिवाइड बाई 10 हो जाएगी। सो 5 टाइम्स 9 इज 45, 3 times 9 is 27, 20, 20। 5 times 9 is 45, 3 27, 28, 29, 30, 31, 1 is 9, 12। so 1215 आएगा यहाँ से, यहाँ पे हमारे पास 121.5 आ जाएगा। and this will 5 times 25, 5 times 2 is 10, this 2 will cancel by this 2, so over here you will get 121.5। it means that we did some sort of minor mistake। okay, अच्छा, इसको आप सॉल्व कर लो तो इससे हमारे पास आएगा यहाँ पे हमारे पास आएगा ये हमारे पास आ जाएगा 5 टाइम्स 2 इज 10, तो ये एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ओके। इसके बाद हमारे पास क्या है कि 9 टाइम्स 13.5 से क्या, 5 टाइम्स 9 is 45, 5 will come, 4 will go, 27, 29, 30, 31। सो इससे हमारे पास ये आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, टाइम्स 4.18, बट वो नीचे 4.18 कैसे हो जाएगा,
and you will get in watt, sorry in calorie. ओके और नीचे आपका 10 भी आएगा. So what will happen? 121.5 divided by 10 to 12.15 आएगा. So in this case, option C will be correct answer. Okay, next I'm going to number 56. That is a voltage drop by 10 volt developed across a 1 kilo ohm resistor. The power dissipated in the resistor is, so P is equal to V square divided by R. So it will be V square is 100 divided by R is 1000. So 0.1 I guess. Okay, so number 57, a 12 volt battery of internal strength Etna is connected to a variable resistor. At what value of current drawn from the battery is the heat produced in the resistor maximum? Okay, as you know that he is direct proportion to PT. It means कि power आपका maximum कब होगा, power आपका maximum तब होगा when your internal resistance become equal to the external resistance. The internal resistance is 4 is given to us. Okay, so this is the variable resistor. Okay, so like internal resistance become equal to the external resistor. Okay, तो आपने इसको external resistor internal resistance के equal बनाने. Okay, to get the maximum power. बट यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे एफिशिएंसी वहाँ पर डिक्रीज होती है. तो यहाँ पे क्या होगा 24 वोल्ट बैटरी है. ओके, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी है दैट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ओके, और ये 4 ओम है तो ये भी 4 ओम होगा. सो यू नीड टू फाइंड द करंट. सो एज यू नो करंट इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा. सो इससे क्या आ जाएगा 4 times 2 is 8, 4 times 6 is 24. सो करंट आपका 3 एम्पियर करंट, उस पर ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टर हो गया, द हीट प्रोड्यूस हो गया. ओके सॉरी. ओके, एमसीक्यू नंबर 58 दैट इज a cell send current through a resistor R1 for time t. Next, the same cell send current through another resistance R2 for the same time t. If the same heat is developed in both the cases, then internal of the cell is okay. So over here okay, so what we will do in this case, as we know that H is equal to I square RT. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर चेंज है तो हमारे पास H और सेम हीट द सेम हीट इज डिवेलप. ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा I स्क्वायर R1T हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे H इज इक्वल टू I स्क्वायर R2T हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एज वी नो द करंट इन दिस केस क्या हो जाएगा दैट्स इक्वल टू E डिवाइड बाय R1 प्लस माइनस R होगा. ओके, for this case it will be I will be equal to E divided by R2 प्लस माइनस R. ओके, तो इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो. हीट दोनों की वैल्यू सेम है और T और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इट विल लुक लाइक दिस. इट विल बी लाइक I स्क्वायर की जगह आपने ये लिखना है E. दिस विल बी E स्क्वायर डिवाइड बाय R1 प्लस R स्क्वायर. ओके, R1 T आप कैंसिल हो जाएगा इस T के साथ. ओके, यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी T था, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल गेट R1 into R2 plus R all square, and over here you will get R2 into R1 plus R all square. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने
रिवर्स चेकिंग करनी है। ओके, अच्छा, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है, तो लाइक माई इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस वन। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह कर लूँ कि ये इन्होंने कहा कि आपका आर इज इक्वल टू R1 R2 होगा, तो इसमें मैं ये ऑप्शन दे देता हूँ। सो दिस विल बी R² R1 प्लस R2 हो जाएगी। ओके, so over here what will happen, you need to equalize all this। okay, तो आपका ये हो जाएगा this will be R1 आपका क्या हो जाएगा, R1 आपका हो जाएगा R² डिवाइड बाय R2। ये इसमें आप इस तरह कर लो कि इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल दीज, हम इस तरह करते हैं यहाँ पे कि रैंडम वेरी रहता है। ओके, लेट सपोज R1 मेरे पास है 2, R2 भी मेरे पास है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल r आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स 2 इज़ 4, तो उसके रूट ले लो तो 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी पुट कर लो ये 2 2 प्लस 2, ये भी 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2, तो 2 टाइम्स प्लस 2 इज़ 4, 4 स्क्वायर 16, 32 आ रहा है। यहाँ पे भी 4 16 32 आ रहे हैं। ओके, तो इट मीन्स दैट दिस आंसर विल बी करेक्ट आंसर। सर आपने स्टेप बाय स्टेप चेक करने हैं और आपने देखना है कि कौन सा इसमें आपके पास करेक्ट आंसर होगा। Okay, answer number 59, that is in the circuit shown in figure 4.12, the cell has an internal resistance of 1 ohm. The heat produced is in 8 ohm resistor coil is 32 calorie per second. The heat produced in 1 second in 4 ohm coil is okay, तो ये भी उसी तरह का है हमारे पास। यहाँ पे हमने क्या करना है, एट ओम रेजिस्टर में हमारे पास इतना हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फार्मूला 8 ओम का I² R। सो यहाँ पे हमने 32 कैलोरी है, सो यूनिट कन्वर्ट दिस इनटू दी जूल पर सेकेंड। ओके, तो आपका दिस विल बी I² एंड दिस इज इन 8 ओम, तो आपका टाइम्स 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास करंट आ जाएगा। ओके, करंट कितना आ जाएगा, करंट विल बी इक्वल टू 32 टाइम्स 4.18 डिवाइड बाई 8 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास करंट आ गया। ओके, अब हमें ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें 1 ओम है सेल्स का, और हीट प्रूफ 8 ओम रेजिस्टर इस इतना हीट प्रूफ इन 1 सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टर इस, तो यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे ये भी 8 ओम है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास 12 ओम है, और यहाँ पे हमारे पास 8 ओम है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास 4 ओम है। So in 8 ohm resistor heat is this one, so यहाँ पे हमारे पास करंट आ जाएगा, this will be I2 करंट होगी, सेकेंड ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है। तो अब I1 करंट किस तरह फाइंड करना है, we will need to do that। तो हमारे पास I1 करंट कितना होगा, तो ये हमारे पास है 8 ओम। ओके, ये हमने ऑपोजिट, दिस इज 8 ओम, दिस इज 4 ओम।
तो यहाँ पे हमारे पास करंट जो था 8 ओम में, तो वो हमारे पास I1 I2 नहीं था, वो हमारे पास टोटल करंट था, दिस करंट। तो अब हमारे पास टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो ये I1 प्लस I2 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू दिस वन 32 टाइम्स 4.18 डिवाइड बाई 8 स्क्वायर रूट। ओके, अब हमारे पास I1 कितना होगा, I1 हमारे पास हो जाएगा बाय करंट डिवाइडर रूल। सो करंट हमारे पास 8 ओम में कितना है, दैट इज इक्वल टू 32 टाइम्स 4.18 डिवाइड बाई 8। और कितने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वी आर इंटरेस्टेड इन 4 ओम रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नो सॉरी, यहाँ पे आपने करंट सेकंड फॉर्म में लेना है, रजिस्टर जो होगा वो सेकंड लेना है आपने। तो यहाँ पे हमने 4 ओम में फाइंड करने, तो 12 यहाँ पे लेने, और नीचे हमने 12 प्लस 4 करना है, 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास I1 हो गया। अब हमारे पास पावर इन 4 ओम रजिस्टर कितना है, दैट इज इक्वल टू I1 स्क्वायर और 4 ओम। तो I1 स्क्वायर कितना है, दैट इज इसका स्क्वायर ले लो, दैट्स विल गिव यू 32 प्लस 4.18 मल्टीप्लाई बाई 4.18 डिवाइड बाई 8, ये 12 स्क्वायर हो जाएगा, एंड नीचे आपका 16 स्क्वायर हो जाएगा। 4 ओम रजिस्टर कितना है, वो 4 ओम है, तो वो ऊपर आके यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, एंड यू विल डिवाइड इट बाय 4.18 सो दैट यू विल गेट द आंसर इन कैलोरी। ओके, तो 32 हो जाएगा, 4.18 तो वहाँ पे चले जाएगा, 12 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, नीचे आपका 8 टाइम्स 16 स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या जाएगा, 32 टाइम्स 12 टाइम्स 12 टाइम्स 4, तो 18,432 इससे 9 आ रहा है हमारे पास, तो 9 के लिए दिस विल बी करेक्ट आंसर। ओके, MCQ number 60, last MCQ of this class is you are giving resistance wire of length itna, this length is given to us, that is 450 centimeter, and a battery of negligible internal resistance, this one, in which case the maximum amount of heat is generated. So we need to find the maximum amount of heat. Okay, so okay, so we have this resistor. Okay, this length of wire is given to us. Okay, and you need to split this 50 centimeter wire into its 4 parts, equal 4 part. Okay, so then you need to find the maximum amount of heat is generated. So इसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस, एक्चुअली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय, इसमें वैसे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन दिस वन होगा, रो एल डिवाइड बाय आर की इक्वल है, तो रो एल डिवाइड बाय ए की इक्वल है, so it means that resistance is directly proportional to length. So if your length get decreased, so it means that your resistance will also get decreased. So in this case your resistance will decrease by 4. Okay, length of one resistor is R divided by 4. So यहाँ पे हमने फिर क्या करना है, over here as we know that my total resistance, क्योंकि सब resistance आपके पैर उसमें कनेक्ट है पैरेलल में, तो you need to find the equivalent resistance. So equivalent resistance and all resistance have the same value. Okay, so what will happen, यहाँ पे आपका जो R total होगा that will be equal to 1 resistor divided by 4. Okay, 1 resistor value is this one, so that it means that that's equal to R divided by 16. Okay, so this is your total resistance. Now we know that H is equal to I square RT. So over here the maximum amount of heat is generated, so you need to find the maximum amount of heat. Okay, so यहाँ पे हमारे पास क्या है कि H is डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, को काफ़ी सेंसिटिव होते हैं. ओके,
सो हमारे पास करंट किसके इक्वल होते हैं, करंट इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देख लो रेजिस्टेंस आपके काफ़ी डिक्रीज हो गया। ओके, तो ये जब डिक्रीज हो गया तो इतनी करंट आपकी इंक्रीज हो गया, तो करंट इंक्रीज हो गया तो इतनी कि आपका हीट भी ज़्यादा जनरेट होगा। सो इन दिस केस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। So this is the end of this video. If you have any confusion, then any MCQs, please put that in the comment section. Also, please subscribe this channel, and also press the notification button. Okay, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।